Hello students, beta in this video we are going to discuss about the third application of dimensional analysis. Third application of dimensional analysis, and third application is that with the help of dimensional analysis, we can convert one type of system of units into another type. Dimensional analysis ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਥਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਮੈਂਟਮ of a body is 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, है ना। पहला की लिखते हैं आप न्यूमेरिकल वैल्यू, N1 स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर आप पिछे वो लिखते हैं यूनिट्स, मास दे यूनिट्स, लेंथ दे यूनिट्स, टाइम दे यूनिट्स, है ना। ऊपर लिखते हैं असी पावर्स, लाइक मास दे यूनिट्स की पावर 1 है ना, kg की पावर। मीटर लेंथ के यूनिट्स ने, मीटर की पावर भी 1 है ना। सेकेंड्स टाइम के यूनिट्स हैं, यदी पावर -1 है। असी एवं लिखते, पहला की लिखते हैं बेटा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखनी है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखनी है बेटा। पहला तुसी ओदी की लिखते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू। पहला की लिखते हो न्यूमेरिकल वैल्यू। उस तो बाद तुसी लिखते हो मास दे यूनिट्स, लेंथ दे यूनिट्स, टाइम दे यूनिट्स। फिर उपर लिखते हो तुसी उन्हां दीयां पावर्स जिन्नियां जिन्नियां हैगियां ने। तो आप एवें लिख सकते हैं, इन वन सिस्टम जिवें एक सिस्टम है, एक केड़ा सिस्टम है बेटा, SI सिस्टम। दिस वन इज SI सिस्टम, ये कह लो आ वाला। 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर ते सेकेंड, ये जेडे यूनिट्स होंदे ने केड़े सिस्टम च होंदे ने बेटा, SI सिस्टम च होंदे ने। तो दिस इज SI सिस्टम। क्लीयर? तो एक सिस्टम च असी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, पहला असी लिखते हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर असी लिखते हैं उसके मास के यूनिट्स, लेंथ के यूनिट्स, टाइम के यूनिट्स,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਿजिकल ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ बेटा, ठीक है। पहला असी लिखी है N1, N1 stands for numerical value of the quantity in one system, numerical value of the quantity in one system. What is M1? M1 is unit of mass, unit of mass in one system, one system च mass the units put करांगे। L1 units of length in one system, T1 units of time in one system, A B C ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਪਾਵਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਵੇ, किसी जगह पे मीटर की पावर 2 भी हो सकती है, मीटर की पावर 3 भी हो सकती है। जिथे मीटर नहीं होएगा उत्थे असीं मीटर की पावर कितनी ले लेंगे, 0, है ना। तो ये ऊपर बेटा समझ आ रहे ना, वट इज़ N1? N1 किसी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है इन वन सिस्टम, इन वन सिस्टम। देखो सारे के नीचे 1 पाया, दैट मीनस सारिया वैल्यूज़ एक सिस्टम च ने। ओके, N1 हैगी न्यूमेरिकल वैल्यू, M1 हैगा यूनिट ऑफ मास, L1 हैगा यूनिट ऑफ लेंथ एंड T1 हैगा यूनिट ऑफ टाइम। ABC की ने उन्हां दियां पावर्स। अच्छा हुण मैनूं दसो ये जिहड़ा 5 किलोग्राम मीटर पर सैकेंड है, जे आपां इहनूं CGS च बदलीए, इन CGS सिस्टम च बदलीए, तो बेटा 5 किलोग्राम होंगे 1000 ग्राम के इक्वल, 1 किलोग्राम होंगे 1000 ग्राम, 1 मीटर होंगे 100 सेंटीमीटर, सैकेंड तो सैकेंड ही होंगे, है ना। तो ये कितना बन गया, P इज इक्वल टू 5000000 ग्राम सेंटीमीटर पर सैकेंड, इन्ना बन गया, है ना। हुण मैनूं ऐ दसो बेटा, ये जी असी क्वांटिटी लिखी है, ये क्वांटिटी असी दूसरे सिस्टम च लिखी है, तो इन सैकेंड सिस्टम, ध्यान ना समझो मैं फार्मूला बना रहा बेटा, कोई न्यूमेरिकल नहीं कर रहा। इन सैकेंड सिस्टम अगर असी क्वांटिटी लिखनी है तो बेटा फर्स्ट सिस्टम च न्यूमेरिकल वैल्यू 5C, न्यूमेरिकल वैल्यू 5C, सैकेंड सिस्टम च न्यूमेरिकल वैल्यू इन्नी है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। N2 is numerical value of quantity in second system, second system च quantity दी वैल्यू है N2। ग्राम, इस च बेटा मास दे यूनिट्स किलोग्राम सीगे, इत्थे मास दे यूनिट्स ग्राम है, यूनिट्स चेंज हो गए M2। इत्थे लेंथ दे यूनिट्स मीटर्स सीगे, उरे लेंथ दे यूनिट्स सेंटीमीटर हो गए, लेंथ दे यूनिट्स चेंज हो गए, ठीक है। टाइम दे T2 चलो सेम भी ने, कोई गल नहीं, T2 है ना। चेक करो इत्थे भी किलोग्राम की पावर 1 सी, उरे भी ग्राम की पावर 1 है, उरे भी मीटर की पावर 1 सी, उरे भी सेंटीमीटर की पावर 1 है, उरे भी सैकेंड की पावर -1 सी, उरे भी सैकेंड की पावर, मतलब पावर्स सेम है तो पावर्स सेम रखांगे। दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी इन सेकेंड सिस्टम। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, चेक करो बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, मास के यूनिट्स चेंज हो सकते हैं, लेंथ के यूनिट्स सेम चेंज हो सकते हैं, टाइम के यूनिट्स चेंज हो सकते हैं, बट पावर्स रिमेन्स सेम। इत्थे भी पावर्स 1 1 -1 है, इत्थे भी पावर 1 1 -1 है, तो इस करके इत्थे भी पावर ABC रखा, इत्थे भी पावर ABC रखा, पावर्स नहीं चेंज होंगी। क्लीयर। सो ये असी फिजिकल क्वांटिटी देखो जी मैं बॉक्स कर रहा है, ये असी फिजिकल क्वांटिटी लिखी है इन वन सिस्टम, ये असी फिजिकल क्वांटिटी लिखी है इन सेकेंड सिस्टम, हाँ वाली सेकेंड सिस्टम। क्लीयर। हुण मैनूं दसो भी की ये भी मोमेंटम है बेटा, दिस इज आल्सो मोमेंटम, ये SI सिस्टम सी, ये भी मोमेंटम है, ये CGS सिस्टम च सीगा, ये भी मोमेंटम है,
5 किलोग्राम मीटर पर सैकेंड SI सिस्टम च, ये भी मोमेंटम है बेटा 5 × 10⁵ किलोग्राम सेंटीमीटर पर सैकेंड, ये CJ सिस्टम च है। मैनूं दस्सिओ दोनों चों किहड़ी वैल्यू वड्डी है? ये वैल्यू वड्डी है 5 किलोग्राम मीटर पर सैकेंड वड्डा हुंदा या 5 × 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सैकेंड वड्डा हुंदा है? दोनों चों किहड़ा वड्डा है? पहली क्वांटिटी वड्डी है या दूसरी क्वांटिटी वड्डी है? P1 वड्डा है या P2 वड्डा है? थोड़ा सोचो तो सोच के मैनू दसो, अपने माइंड च लैके आओ आंसर भी P1 वड्डा होएगा या P2 वड्डा होएगा? नहीं बेटा, दोनों सेम ने, दोनों चों कोई वड्डा नहीं। आपां ने तो सिर्फ सिस्टम बदले कि सिस्टम बदलण नाल वैल्यू बदल जाती हुंदी है कि सिस्टम बदलण नाल वैल्यू बदल जाती हुंदी है। जिवें सपोज करो SI सिस्टम च लेंथ 5 मीटर है, CJ सिस्टम च है ना, SI सिस्टम च लेंथ 5 मीटर है, CGS सिस्टम च वही लेंथ 500 सेंटीमीटर होएगी। तो मैनू दसो ये L1 दिस इज L2, दोनों चों किहड़ा वड्डा? 5 मीटर वड्डा या 500 सेंटीमीटर वड्डा? नहीं बेटा, दोनों इक्वल हुंदे ने भी जिहड़ा 500 सेंटीमीटर है वो 5 मीटर दे ही की हुंदा है, इक्वल हुंदा है। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बदलदी है, क्वांटिटी रिमेन्स सेम, क्वांटिटी रिमेन्स सेम, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बदलदी है। न्यूमेरिकल वैल्यू बदलदी है, यूनिट्स बदलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होंदी है, यूनिट्स चेंज होंदे ने, क्वांटिटी नहीं बदलती। क्वांटिटी ना घटती है ना बढ़ती है। सिस्टम चेंज, समझ आ गई मैं की बोल रहे हैं? सिस्टम बदलन नाल, एक सिस्टम तो दूसरे सिस्टम च जान नाल न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, यूनिट्स चेंज हो जाएंगे। जिवें इत्थे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, यूनिट्स चेंज हो गए, बट क्वांटिटी रिमेन्स सेम, क्वांटिटी उन्नी रहेगी। सिस्टम बदलन नाल क्वांटिटी ना घटती है ना क्वांटिटी बढ़ती है। समझ गए? तो बेटा क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम है ना, आ वाली क्वांटिटी P1 एंड सेकेंड क्वांटिटी P2 ये सेम ने, तो बिकॉज ड्यू टू चेंज इन सिस्टम क्वांटिटी रिमेन्स ऑलवेज सेम। जिहड़ी क्वांटिटी है वो हमेशा सेम रहिंदी है, इस करके असीं लिख सकते हैं। लिसन, वेट अ मिनट, यस, सिस्टम चेंज होने नाल क्वांटिटी नहीं चेंज होंदी, क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन्स सेम, इस करके दोनों क्वांटिटीज इक्वल होंगी। देयरफॉर फर्स्ट सिस्टम की क्वांटिटी ते सेकेंड सिस्टम की क्वांटिटी इक्वल होगी, या कह लो सेकेंड सिस्टम की क्वांटिटी ते फर्स्ट सिस्टम की क्वांटिटी इक्वल होगी। एवं भी लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2 या P2 इज इक्वल टू P1, है ना। P2 की वैल्यू अपने को आई है, कितनी वैल्यू लिखी है अपने P2 की बेटा? N2 M2 L2 T2 पावर A B C, एंड P1 की वैल्यू लिखी है N1 M1 L1 T1 पावर A B C। इतों आ M2 L2 T2 उधर नीचे ले जाओ, तो बेटा N2 इज इक्वल टू N1 M1 L1 T1 A B C अपॉन M2 L2 T2 अपॉन A B C। तो इकट्ठा करके लिख दो बेटा हुण इन्हां नूं N1 M1 अपॉन M2 दोनों की पावर A है, तो A कॉमन ले लिया बेटा। L1 अपॉन L2 दोनों की पावर B है, B कॉमन ले लिया। T1 अपॉन T2 दोनों की पावर C है, C कॉमन ले लिया। ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले की हैल्प लैके असी एक सिस्टम नूं दूसरे सिस्टम च कन्वर्ट कर सकते। किवें कन्वर्ट कर सकते मैं थोड़ा एग्जाम्पल समझावांगा, ठीक है। पर पहला मैं थोड़ा एक बार ये रिवाइज करवा दिना।
जो मैं करवाया, क्योंकि अगर ये थोनू ये समझ आ गया है ना बेटा, अगर आ चीज़ समझ आ गई फिर दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो अपनी थर्ड एप्लीकेशन की सीगी भी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन कन्वर्ट वन टाइप ऑफ सिस्टम इनटू अनदर टाइप ऑफ सिस्टम। एक सिस्टम ਨੂੰ दूसरे सिस्टम च कन्वर्ट कर सकते हैं, SI सिस्टम ਨੂੰ CGS सिस्टम च कन्वर्ट कर सकते हैं, CGS सिस्टम ਨੂੰ SI सिस्टम च कन्वर्ट कर सकते हैं। होर भी सिस्टम होंगे ने, FPS सिस्टम भी होंगे, MKS सिस्टम भी होंगे। FPS सिस्टम का मतलब होंगे फुट पाउंड सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम। MKS सिस्टम का मतलब होंगे मीटर किलोग्राम सैकेंड सिस्टम, M मीटर K किलोग्राम S सैकेंड। ये MKS सिस्टम SI सिस्टम ਨੂੰ भी बोलिया जाता है। एवं सिस्टम कई तरह के होंगे ने, एक सिस्टम ਨੂੰ दूसरे सिस्टम च कन्वर्ट करने लिए आप ये एप्लीकेशन यूज़ करते हैं बेटा। क्लीयर? अच्छा, मैं थोनू की दस्या सीगा भी सपोज असी कोई क्वांटिटी लिख ली बेटा, मोमेंटम 5 किलोग्राम मीटर पर सैकेंड, तो इस क्वांटिटी ਨੂੰ लिखण वास्ते असी की कुछ लिखिया, एक तो असी उसकी की लिखी बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, एक की लिखी न्यूमेरिकल वैल्यू, एक असी मास दे लेंथ दे टाइम दे यूनिट्स लिखे, मास दे यूनिट्स, लेंथ दे यूनिट्स, टाइम दे यूनिट्स, उपर पावर्स उन्हों दी पावर्स है ना। फिर असी उस सिस्टम नू एवें इस फॉर्म च लिख लिया बेटा भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इन वन सिस्टम, ये मास का यूनिट हो गया, लेंथ का यूनिट हो गया, टाइम का यूनिट हो गया इन वन सिस्टम, ये हो गया उन्हों दी पावर्स। फिर असी उस सिस्टम नू, वो किहड़ा सिस्टम सी बेटा, SI सिस्टम सी, SI सिस्टम नू किस च बदल लिया, CGS सिस्टम च। CGS सिस्टम च जो बदलिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, है ना। चेंज भी हो सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं, जिमें टाइम के यूनिट्स सेम रह गए। टाइम SI च भी सैकेंड्स च मेजर होंदा है, टाइम CGS दे विच भी सैकेंड्स च मेजर होंदा बेटा। ठीक है, तो एवें आपां ने न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया, देखो N1 की जगह N2 लिखती, यूनिट्स चेंज हो गए, मास लेंथ ते टाइम दे उहदी जगह M2 L2 T2 लिखते। इत्थे भी पावर्स 1 सीगियां, पूरे भी पावर्स 1 1 नहीं ने, देखो 1 1 -1, पावर्स सेम रखनियां ने। ठीक है, यूनिट्स चेंज हो जाते होंगे ने, पावर्स नहीं चेंज होंदियां होंदियां। इत्थे भी पावर ABC ने 1 1 -1 ने, पूरे भी पावर ABC ने 1 1 -1 ने। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होएगी बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स चेंज होंगे, पावर्स रिमेन्स सेम ऑलवेज। ठीक है, तो सिस्टम बदलन नाल, मैं थोनू आ एग्जाम्पल दी सी बेटा भी सिस्टम बदलन नाल क्वांटिटी नहीं वड्डी छोटी हुंदी। किते कहो भी SI सिस्टम च 5 मीटर बहुत वड्डा है, CGS सिस्टम च 500 सेंटीमीटर बहुत छोटा है, या किते इनू सोच लो भी 500 सेंटीमीटर है बहुत वड्डा होएगा, ये सिर्फ 5 मीटर है तो बहुत छोटा होएगा, नहीं। सिस्टम बदलन नाल एक सिस्टम तो जो तुसी दूसरे सिस्टम च जाने हो है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, यूनिट्स चेंज हो जाते हैं, बट क्वांटिटी रिमेन्स सेम। जिन्ना 5 मीटर है उन्ना ही 500 सेंटीमीटर है। 5 मीटर एंड 500 सेंटीमीटर बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है बेटा, तो सिस्टम बदलन नाल न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, यूनिट्स चेंज हो जाते हैं, बट क्वांटिटी रिमेन्स सेम। जिन्नी क्वांटिटी यह है उन्नी क्वांटिटी यह रहेगी। तो असीं दोनों क्वांटिटीज़ इक्वेट करती हैं, इक्वेट करन ते अपने को फार्मूला बन गया। हुण इस फार्मूले की कुछ है बेटा, वट इज़ N1 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन वन सिस्टम, M1 यूनिट ऑफ मास इन वन सिस्टम, यूनिट ऑफ लेंथ इन वन सिस्टम, यूनिट ऑफ टाइम इन वन सिस्टम, यूनिट ऑफ मास इन सेकेंड सिस्टम, यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकेंड सिस्टम, यूनिट ऑफ टाइम इन सेकेंड सिस्टम। ABC की ने उन्होंने दियां पावर्स, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम। जे सानू एक सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, असी दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला याद रखना भी आसान है बेटा, 1 वाली टर्म्स सारिया उपर है, 2 वाली टर्म्स सारिया नीचे ने, ABC पावर्स है बस। हुण इस फार्मूला जो भी यूज़ करना है तो बेटा इनू किमें यूज़ करना है, इस दे विच एवें होएगा बेटा, क्वेश्चन देखो एवें होएगा, कन्वर्ट 36 जूल इनटू CGS सिस्टम। तो इस 36 जूल
ਜਾਊਲ ਇਜ਼ SI ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਲ ਹੈ ਉਹ SI ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ। 36 ਜਾਊਲ ਇਜ਼ ਅ SI ਸਿਸਟਮ। ਆਪਾਂ ਨੇ SI ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ किस कन्वर्ट करना है, CGS सिस्टम। तो कोशिश करियो भी जेड़ा सिस्टम सानू पता है, जेड़ा सिस्टम नोन है, नोन है ना, उन्होंने वन वाली टर्म्स दो, वन वाली टर्म्स। ये होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मास दे यूनिट्स, लेंथ दे यूनिट्स, टाइम दे यूनिट्स, उन्होंने वन वाली टर्म। जिस च असी कन्वर्ट करना है, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ फाइंड करना है, फाइंड उसनों ਅਸੀਂ टू वाली टर्म्स दईए। इस चीज़ का ख्याल रखिए, समझ गए। ਜਿਹੜਾ सिस्टम पता है, नोन है, जिमें इस 36 जाउल SI सिस्टम, ये SI सिस्टम सी, SI सिस्टम नोन है, तो SI सिस्टम ਨੂੰ वन वाली टर्म्स दो, मतलब ਉਹਦੀ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 36। मास ਦੇ यूनिट्स SI सिस्टम च, मास ਦੇ यूनिट्स SI सिस्टम च ਹੁੰਦੇ ਨੇ किलोग्राम, लेंथ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ मीटर, टाइम ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ सेकंड्स। जिस कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है, मास ਦੇ यूनिट CGS सिस्टम च ग्राम, लेंथ ਦੇ सेंटीमीटर, टाइम ਦੇ सेकंड। एवं फिर फार्मूला लगा दो, सॉल्व करके आंसर आए, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। पावर्स, पावर्स की पहचान किमें होएगी बेटा, भी A किन्ना है, B किन्ना है, C किन्ना है। उस वास्ते तुसी क्वांटिटी देखोगे भी ये क्वांटिटी केड़ी है, ਇਹਦੇ यूनिट्स तो पहचान होएगी ਤੁਹਾਨੂੰ क्वांटिटी की। या तो क्वेश्चन च ਤੁਹਾਨੂੰ क्वांटिटी दी होएगी भी ये फोर्स है या वर्क है या पावर है। जे दी हुई है फिर तो बहुत वधिया गल है ना, जे दी हुई है फिर तो बहुत वधिया गल है, क्योंकि ईजीली पता चल जाएगा। बट जे नहीं दी हुई तो यूनिट्स तो पहचान करियो, जिमें इत्थे जाउल्स हैं, जाउल्स किस दे यूनिट्स होंदे ने, वर्क दे यूनिट्स होंदे ने। दैट मीनस ये क्वांटिटी वर्क है, दिस क्वांटिटी इज वर्क। वर्क का डिमेंशनल फार्मूला होंदा L2 T-2। इनू M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C नाल कंपेयर करके A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू फाइंड आउट कर लियो। M की पावर नू M की पावर नाल कंपेयर कर लियो, जिमें इत्थे M की पावर 1 है तो A की वैल्यू 1 आ गई। L की पावर नू L की पावर नाल कंपेयर कर लियो, B की वैल्यू आ जाएगी 2, है ना। C की पावर, T की पावर नू T की पावर नाल कंपेयर कर लियो, C की वैल्यू आ जाएगी -2। एवं बेटा पहला क्वांटिटी पहचानोगे, पहला की पहचानोगे भी क्वांटिटी केड़ी है, केड़ी क्वांटिटी है। वो क्वांटिटी लिख के ਉਹਦਾ डिमेंशनल फार्मूला लिख के ਉਹਨੂੰ M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C नाल कंपेयर करके तुसी A B C ਦੀਆਂ वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते। A B C ਦੀਆਂ वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई, आ सिस्टम च आ वैल्यूज़ पता चल गई, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। क्लीयर। हुण मैं थोड़ा एक सिंपल पहला एक एग्जाम्पल दे के थोड़ा कन्वर्ट करना सिखाना क्वेश्चन, भी असी ये फार्मूला किमें यूज़ करना है। थोड़ा ये तो समझ आ गया भी ये फार्मूला किमें बने बेटा, ये समझ आ गया भी ये फार्मूला किमें बने, वो फार्मूला यूज़ किमें करना समझ आ गया। हुण मैं थोड़ा एक प्रोपर तरीके नाल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा अपने को, कन्वर्ट a force of 16 Newton into dynes with the help of dimensional analysis। dimensional analysis दी help लेके, with the help of dimensional analysis ਆਪਾਂ ਨੇ 16 न्यूटन नू डाइंस च कन्वर्ट करना, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट 16 न्यूटन इनटू डाइंस। अंडरस्टैंड। हुण ऐ दसो किहड़ी क्वांटिटी है बेटा, है 16 न्यूटन। न्यूटन तो पहचान आ गई भी इट इज़ अ फोर्स, क्योंकि न्यूटन यूनिट्स किहदे हुंदे ने, फोर्स दे। तो बेटा फोर्स क्वांटिटी है। फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला की होंदा ML T-2 होंदा। इनू कंपेयर कर लो पहला M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C नाल। इत्थों तुसी A की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, M की पावर नू M की पावर नाल कंपेयर कर दो, A की वैल्यू आ जाएगी 1, L की पावर नू L की पावर नाल कंपेयर करो, B की वैल्यू भी आ जाएगी 1,
टी दी पावर नू टी दी पावर नाल कंपेयर करो, सी दी वैल्यू आ जाएगी -2। देखो ए बी सी दी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई बेटा। ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग च ही फाइंड आउट कर लिया करो, चैक करके भी किहड़ी क्वांटिटी है। जिहड़ी क्वांटिटी होवे उस क्वांटिटी का डिमेंशनल फार्मूला लिख लो, उन्होंने एम दी पावर ए, एल दी पावर बी, टी दी पावर सी नाल कंपेयर करके ए बी सी दी वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। हुण देखो किहड़ा सिस्टम सानू पता है, किहड़ा सिस्टम पता है बेटा, एक किहड़ा सिस्टम होया न्यूटन वाला सिस्टम होया SI। डाइंस किहड़ा सिस्टम होंदा बेटा, CGS। असी SI सिस्टम नू CGS सिस्टम च कन्वर्ट करना है, मतलब सानू SI सिस्टम नॉन है, ये फाइंड करना है। तो जिहड़ा नॉन है उन्होंने 1 वाली टर्म्स दे दो बेटा, उन्होंने 1 वाली टर्म्स दे दो। जिहड़ा अननोन है उन्होंने 2 वाली टर्म्स दो। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन SI सिस्टम, SI सिस्टम च न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है बेटा, 16। मास दे यूनिट्स SI सिस्टम च, हुण उपर देखने की लोड़ ही नहीं, मास दे SI सिस्टम च यूनिट्स होंदे ने किलोग्राम, लेंथ दे SI सिस्टम च यूनिट्स होंदे ने मीटर, टाइम दे की होंदे ने सेकंड्स। ये तो थोड़ी जनरल नॉलेज है, ये तो थोड़ी जनरल नॉलेज है बेटा भी SI सिस्टम च मास दे यूनिट्स की होंदे ने, लेंथ दे की होंदे ने, टाइम दे की होंदे ने। ਇਹਦੀ न्यूमेरिकल वैल्यू असी सैकेंड सिस्टम की फाइंड करनी है। मास के यूनिट्स CGS सिस्टम च मास के यूनिट्स होंदे ने ग्राम, लेंथ के होंदे ने सेंटीमीटर, टाइम के होंदे ने सेकेंड्स। हुण सानू सारियां वैल्यूज पता चल गई। हुण फार्मूला लगा दो, जो फार्मूला आपां ने कीता, जो आ फार्मूला कीता वो फार्मूला अप्लाई कर दो। फार्मूला अपने कोल हैगा N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 दी पावर A, L1 अपॉन L2 दी पावर B, T1 अपॉन T2 दी पावर C। हाँ, N1 कितना बेटा 16, M1 किलोग्राम, M2 ग्राम, A1, L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर, B1, T1 सेकेंड, T2 सेकेंड, C -2। ठीक है बेटा। हुण ये तुहाडी इच्छा है, चाहे उपरले नूं कन्वर्ट कर लो चाहे नीचे वाले नूं। ठीक है, किलोग्राम नूं ग्राम च बदल लो या ग्राम नूं किलोग्राम च बदल लो, तुहाडी इच्छा है। जिहड़ा तुहानूं ईजी लगे उसनूं कन्वर्ट कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, किलोग्राम 1 किलोग्राम कंटेन्स 1000 ग्राम, नीचे ग्राम ही रखो, है ना। मीटर 1 मीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर। जिहड़ा तुहानूं ईजी लगदा वो कन्वर्ट कर लिया करो बेटा, जरूरी नहीं मैं उपरले कन्वर्ट कर रहा, तुसीं भी उपरले कन्वर्ट करने नहीं, नीचे वाले भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, चाहे उपरले कन्वर्ट कर लो नीचे वाले, चाहे नीचे वाले कन्वर्ट कर लो उपरले। जिहड़ा तुहानूं ईजी लगदा वो कन्वर्ट कर लिया करो। इत्थे सैकेंड नाल सैकेंड कट्टिया गया, ये आ जाएगा 1। ग्राम नाल ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर नाल सेंटीमीटर कैंसिल, है ना। ये आ गया 16, 1000, 100, यदी पावर भी 1 है, यदी पावर भी 1 है। इनू उल्टा दो, है ना, 1 अपॉन 1 पावर 2 हो जाएगी। मतलब जे आप इनू उल्टा देंगे, यदा रेसिप्रोकल कर देंगे तो नैगेटिव साइन किस च बदल जाएगा, प्लस च बदल जाएगा। 1 दी पावर 2, 1 दी पावर 2 1 ही होंदा बेटा, है ना। तो ये कितना बन गया आंसर, ये थोड़ा आंसर आ जाएगा बेटा। कितना आ गया 16 × 10⁵5, है ना। ये अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई N2। ठीक है, तो जो अपना आंसर आ गया, अपना आंसर आ गया 16 न्यूटन इज इक्वल टू 16 × 10⁵5 डाइंस। दैट इज अवर आंसर। 16 न्यूटन नूं डाइंस च कन्वर्ट करना सी, उसी डाइंस कन्वर्ट करता, एवं फार्मूला यूज कर। ठीक है बेटा, थोनू एक क्वेश्चन होर करवाना है, ऐ तो होर अटैम्प्ट करते हैं आप क्वेश्चन, थोड़ा वेट करो। सपोज करो
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड इनटू एसआई सिस्टम। मैं थोड़े सिंपल जो क्वेश्चन करवा रहा पहला थोनू भी थोनू फार्मूला यूज करना आ जाए। कन्वर्ट 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड इनटू एसआई सिस्टम, इनू अपन ने सोल्यूशन कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला तो देखो जो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, असी इसनू एसआई सिस्टम च लेके जाना है। सेंटीमीटर पर सेकेंड केड़ा सिस्टम होंदा बेटा? सीजीएस सिस्टम होंदा। तो असी सीजीएस सिस्टम को एसआई सिस्टम च कन्वर्ट करना है। 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड थोनू पता कि यूनिट्स होंदे ने? सेंटीमीटर पर सेकेंड ये यूनिट्स होंदे ने वेलोसिटी दे। ਇਹਦਾ मतलब जी ये क्वांटिटी है दैट इज वेलोसिटी, है ना। तो बेटा ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला की होंदा? LT -1 ये होंदा वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। इनू आप कंपेयर कर लो अपनी m दी पावर A, L दी पावर B, T दी पावर C नाल, है ना। इत्थे बेटा m है नहीं गा, m है नहीं तो m नू असी कितना लिख लांगे? 0। एग्रीड? वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT -1 होंदा ना। m है नहीं तो m दी पावर कितनी बेटा? 0। तो कंपेयर करन ते a दी वैल्यू 0 आ जाएगी, L नू L नाल कंपेयर करन ते b दी वैल्यू 1 आ जाएगी, C नू T नाल कंपेयर करन ते C दी वैल्यू आ जाएगी -1। ABC फाइंड आउट हो गए। मतलब जिहड़ी क्वांटिटी ना होवे, जिहड़े यूनिट्स ना होन, उहदी पावर 0 लेट हो जाती होगी बेटा। जिवें इत्थे मास नहीं सीगा तो मास की पावर 0, ए दी वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ गए? ओके, हुण आपां ने किस सिस्टम नू किस सिस्टम च कन्वर्ट करना बेटा? सीजीएस सिस्टम नू असी एसआई च कन्वर्ट करना है। सीजीएस नोन हो गया जिहड़ा सानू पता है, एसआई अननोन हो गया, अननोन। सीजीएस नू 1 वाली टर्म्स दे दो बेटा, N1 M1 L1 T1, इनू 2 वाली। जिस जिहड़ा सिस्टम पता होवे, जिहड़ा सिस्टम पता होवे उन्होंने 1 वाली टर्म्स दिया करो, जिसनों असी कन्वर्ट करना है, जिस च कन्वर्ट करना उन्होंने 2 वाली टर्म्स दिया करो, M2 L2 T2। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है बेटा? फर्स्ट सिस्टम च 25। सीजीएस सिस्टम च मास दे यूनिट्स ग्राम, लेंथ दे सेंटीमीटर, टाइम दे सेकेंड। ठीक है। एंड एसआई सिस्टम च बेटा, एसआई सिस्टम च न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मास दे यूनिट्स किलोग्राम होंदे ने, लेंथ दे होंदे ने मीटर, टाइम दे होंदे ने सेकेंड्स। फार्मूला लगा दो, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाय M2 दी पावर A, L1 बाय L2 दी पावर B, T1 बाय T2 दी पावर C, है ना। N1 दी वैल्यू, N1 हैगा 25, M1 ग्राम, M2 किलोग्राम, पावर 0, A दी वैल्यू 0 है, L1 सेंटीमीटर, L2 मीटर, पावर 1, B दी वैल्यू 1 है, T1 सेकेंड, T2 सेकेंड, पावर -1। किसी की भी पावर 0 होवे तो रिजल्ट 1 ही होंदा। दसो बेटा, किसी की भी पावर 0 होवे तो रिजल्ट कितना होंदा? 1। तो यदा तो 1 बन गया। ये सेंटीमीटर नूं असीं मीटर नूं सेंटीमीटर च बदल दो, 1 मीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं भी उपर नूं कन्वर्ट करना, नीचे वाले नूं भी कर सकते। सेकेंड नाल सेकेंड कैंसल, है ना। सेंटीमीटर नाल सेंटीमीटर कैंसल, कितना बन गया है? 25 इंटू 1 इंटू 1 बाय 100, 1 दी पावर -1, 1 ही होंदा, है ना बेटा। कितना आ गया रिजल्ट? 0.25। तो यह कन्वर्शन होगी भी जेड़ा 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 25
5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, दैट इज इक्वल टू 0.25 मीटर पर सेकेंड। SI सिस्टम क्लियर। तुम इनू एवं भी लिख सकते हो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0.25 यूनिट्स इन SI सिस्टम। 0.25 यूनिट्स, जे यूनिट्स नहीं पता चलते ना तो मैं पिछे यूनिट्स पा दिया करो, यूनिट्स इन SI सिस्टम। क्लियर बेटा, समझ आ गया कि मैं कन्वर्ट करना है, पक्का? ठीक है, एक क्वेश्चन होर अटैम्प्ट करते हैं, फिर आप थोनों इसे टाइप नाल रिलेटेड एक 3-4 क्वेश्चन होर करांगे बेटा इसे वीडियो दे विच, इसे टाइप नाल रिलेटेड। ठीक है भी कहे जे क्वेश्चन अपीयर हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ये नाल दा होर अटैम्प्ट करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट 100 वाट इंटू CGS सिस्टम। मैं सिंपल क्वेश्चन बोल रहा पहला भी थोड़ा एक बार फार्मूला यूज़ करना आ जाए। क्वेश्चन थोड़े जे इस मुश्किल भी आते हैं, इस तो अगला क्वेश्चन मैं दसूँगा भी किमें करना है। पहला आप ये सॉल्व करवाओ, मैनू आ वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाओ। ये पूरा नहीं सॉल्व करांगे, बस मैं थोड़ा फार्मूला बना के छड़ दाँगा, सॉल्व तुम अपने आप करोगे। कन्वर्ट 100 वाट इंटू CGS सिस्टम। पहला तो जो वाट है, वाट SI सिस्टम च यूनिट्स होंगे ने। वाट किस दे यूनिट्स होंगे ने? पावर दे। वाट याद है ना, वर्क पावर एनर्जी, यूनिट 4th चैप्टर च पढ़िया सी, यूनिट 4th दे विच है ना। वाट पावर दे यूनिट्स होंगे ने, पावर दे। पावर दा डिमेंशनल फार्मूला होंदा है ML2 T-3। इनू कंपेयर कर लो M दी पावर A, L दी पावर B, T दी पावर C नाल कंपैरिजन कर लो। M दी पावर A, B दी पावर, L दी पावर B, T दी पावर C नाल। तो इत्थों कंपैरिजन करके A दी वैल्यू आ गई बेटा, M नाल M कंपेयर किया, A दी वैल्यू आ गई 1। L दी पावर नाल L दी पावर कंपेयर की, B दी वैल्यू आ गई 2। T दी पावर नाल T दी पावर कंपेयर की, C दी वैल्यू आ गई -3। समझ आ गई नहीं भी पावर कंपेयर करके फिर ये सॉल्व कर लिया। अच्छा हुण आपां ने किस नूं कन्वर्ट करना है? 100 वाट इंटू CGS सिस्टम। मतलब ये किहड़ा सिस्टम होया? SI। SI पता है, SI सिस्टम नूं 1 वाली वैल्यूज दे दो, CGS सिस्टम नूं 2 वाली वैल्यूज। ठीक है, N1 है 100, N2 फाइंड करना है। मास दे यूनिट्स SI सिस्टम च मास दे यूनिट्स किलोग्राम, लेंथ दे मीटर, टाइम दे सेकेंड। CGS सिस्टम च मास दे यूनिट्स ग्राम, लेंथ दे सेंटीमीटर, टाइम दे सेकेंड्स। क्लियर बेटा, सारिया वैल्यूज पता चल गई, ABC दी वैल्यूज पता चल गई, ये भी समझ आ गई। हुण आप फार्मूला लगा दो बस, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाय M2 दी पावर A, L1 बाय L2 दी पावर B, T1 बाय T2 दी पावर C, है ना। इस वैल्यूज पुट करके सोल्व है ना, कर लोगे ना बेटा क्वेश्चन ये। हुण सुनो, ये हो गया सिंपल क्वेश्चन जिस सानू क्लीयर कट दिता होंदा भी किस सिस्टम नू किस सिस्टम च कन्वर्ट करना। वध तो वध सानू आ क्वांटिटी देखनी पैंदी है भी क्वांटिटी किहड़ी है, वो सानू असी यूनिट्स तो पहचान कर सकते हैं भी किहड़ी क्वांटिटी है ना। हुण आपां जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं बेटा, उस च आपां नू किसी एक सिस्टम नू किसी न्यू सिस्टम च जिहड़ा सिस्टम असी कदे सुनिया ही नहीं उस च कन्वर्ट करने नू कहा जा सकता है। मैं तुहानू क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देना, ध्यान नाल समझियो क्वेश्चन। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन है कन्वर्ट a power of 1
megawatt, convert a power of 1 megawatt into a new system whose fundamental units of mass, length and time are 10 kg, 1 decimeter and 1 minute। ये क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन। थोड़ी बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ क्वेश्चन बेटा। इस च 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜਾ 1 ਮੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ मतलब 10 रेज़ टू पावर 6, 1 ਮੈਗਾ मतलब 10 रेज़ टू पावर 6 वाट। आ 10 रेज़ टू पावर 6 वाट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ बेटा। ਆ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਚ convert a power of 10 raised to power 6 watt into a new system whose fundamental units of mass the units ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ 10 kg, length the units ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ 1 decimeter and time the units ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ 1 minute। ਇਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਨਵਰਟ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ बेटा। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ बेटा, ਇਹ पावर का डिमेंशनल फार्मूला थोनों दस के हटिया हुनी पिछले क्वेश्चन ml2 t -3 इनू m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c नाल कंपेयर करांगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -3। हुण किस नू कन्वर्ट करना बेटा, 10 रेज़ टू पावर 6 वाट नू किस च कन्वर्ट करना है, न्यू सिस्टम च। 10 रेज़ टू पावर 6 वाट नू न्यू सिस्टम च कन्वर्ट करना बेटा, न्यू सिस्टम च। 10 रेज़ टू 6 वाट, वाट यूनिट्स होंगे ने SI, SI सिस्टम नू न्यू सिस्टम च बदलना है। जिहड़ा सिस्टम पता है बेटा उन्होंने 1 वाली टर्म्स दो, जिस च कन्वर्ट करना है उन्होंने 2 वाली टर्म्स दो। ठीक है। N1 कितना बेटा, 10 रेज़ टू पावर 6, मास दे यूनिट्स SI सिस्टम च किलोग्राम, लेंथ दे यूनिट्स SI सिस्टम च, टाइम दे यूनिट्स SI सिस्टम च सेकंड्स। न्यूमेरिकल वैल्यू दी फाइंड करनी है। मास दे यूनिट्स न्यू सिस्टम च मास कितना दिता बेटा 10 kg, लेंथ दे यूनिट्स न्यू सिस्टम च 1 डेसीमीटर एंड टाइम दे यूनिट्स न्यू सिस्टम च 1 मिनट। ये लेने ने बेटा, जो न्यू सिस्टम है मास, लेंथ, टाइम, उस तो आप फार्मूला लगा दो। N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाय M2 दी पावर A, L1 बाय L2 दी पावर B, T1 बाय T2 दी पावर C। ये फार्मूला लगा दो। फार्मूला लगाने तो बाद इस वैल्यूज पुट करो फार्मूले N2 N1 है N1 10 रेज़ टू पावर 6, M1 kg, M2 10 kg, A की वैल्यू 1। ठीक है। L1 मीटर, L2 1 डेसीमीटर, B की वैल्यू 2, टाइम सेकंड T1 सेकंड, T2 मिनट 1 मिनट पावर -3, C की वैल्यू -3। ओके, इनू सॉल्व करते हैं बेटा। जो पहला कन्वर्ट होंगे कन्वर्ट कर देंगे, जो कटिंग होंगी है कटिंग कर देंगे। किलोग्राम नाल किलोग्राम कटिंग होगी, ये बच गया 1/10 है ना। 1 मीटर ते 1 डेसीमीटर च की रिलेशन होंगे दसो मैनू, जे पता है दसो, जे नहीं पता फिर मैं दसा। पता है नहीं पता
वो लिखो ना सीरियल ऑर्डर च, मिलीमीटर, मिलीमीटर तो अगे दसो की आंदा हुंदा है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो अगे डेसीमीटर, डेसीमीटर तो अगे मीटर, सारिਆਂ 'ਚ 10 ਦਾ फर्क ਹੁੰਦਾ। मिलीमीटर तो सेंटीमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਾ फर्क ਹੁੰਦਾ 10 है ना, सेंटीमीटर तो डेसीमीटर 'ਚ 10 ਦਾ फर्क ਹੁੰਦਾ, डेसीमीटर तो मीटर 'ਚ 10 ਦਾ फर्क ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हमें बेटा 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर ਹੁੰਦਾ। वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी होना चाहिए ਇਹ चीज़ां, 1 मीटर 10 डेसीमीटर ਦੇ इक्वल ਹੁੰਦਾ, तो मीटर तो एज इट इज़ रखो, 1 मीटर, मीटर ਨੂੰ कन्वर्ट कर लो है ना, मीटर ਨੂੰ कन्वर्ट कर लो, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, नीचे 1 डेसीमीटर ही रखो, ठीक है। सेकेंड 1 मिनट, 1 मिनट कंटेन्स 60 सेकेंड, 1 मिनट कंटेन्स 60 सेकेंड, डेसीमीटर नाल डेसीमीटर कैंसल, सेकेंड नाल सेकेंड कैंसल, कितना आ जाएगा बेटा 10⁻6, 1/10, 10 दी पावर 2, 10 दी पावर 2 100 हो गया है ना बेटा, 10 दी पावर 2 100, ये आ गया 1/60 है, रेसिप्रोकल कर दो, यदि पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/60 सी 60 ऊपर ले गए पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। बस आ 10 नाल एक 10 कटा जाएगा है ना, ये बन गया 10⁻7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, 6 इंटू 6 इंटू 6 आई थिंक 216 होंगे है ना बेटा, 216, 10⁻7 8 9 10, तो अपना आंसर आ गया 10 या 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1 मेगावाट इज इक्वल टू 216 10⁻10 यूनिट्स इन न्यू सिस्टम। तुसी इनू एवें भी लिख सकते हो, इनू 2.16 इंटू 10⁻12, मतलब इस चीज़ नू पता किवें लिखता है, 100 नाल मल्टीप्लाई 100 नाल डिवाइड करके, मल्टीप्लाई वाले ऐड हो गए, डिवाइड वाले का पॉइंट लग गया, समझ गए। एवें लिखना, एवें बस इत्थे छड्डना, इत्थे छड्ड दो, इसनू एवें भी लिख सकते, समझ गए। एवें बेटा तुहानू किसी भी एक सिस्टम दे के उन्होंने न्यू सिस्टम च कन्वर्ट करने को कहा जा सकता है, इस तो उल्ट भी कहा जा सकता है, थोनू इस आ वाला सिस्टम दे के उन्होंने कहा जा सकता है भी इन्हू SI च कन्वर्ट करो, कन्वर्ट दिस सिस्टम इनटू SI सिस्टम, क्लियर, एवें भी कहा जा सकता है, ठीक है। थोनू मैं एदा इस तो उल्ट क्वेश्चन भी करके दिखा दिना, एक इस तो ओपोजिट क्वेश्चन भी एक मैं करके दिखाना, जिस च असीं किसी एक न्यू सिस्टम नू, एक न्यू सिस्टम नू एक पर्टिकुलर सिस्टम च कन्वर्ट करना होगा। मैं थोड़ा एक होर क्वेश्चन अटैम्प्ट करके दिखाना बेटा, ओके ओके। क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार ध्यान समझ लियो, वैन 1 मीटर 1 किलोग्राम and 1 minute are taken as fundamental units in one system, fundamental units in one system, the magnitude of force is 36 units. What is the value of this force in CGS system? What is the value of this force in CGS system? ये क्वेश्चन है, इस थोनों आ एक अलग तरह का सिस्टम देता, 1 मीटर 1 किलोग्राम 1 मिनट एज अ फंडामेंटल यूनिट्स इन वन सिस्टम, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देती 36 यूनिट्स। असी इस फोर्स को CGS च बदलना है,
सोल्यूशन क्वांटिटी केड़ी है फोर्स फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL/t-2 कंपेयर करो m की पावर a l की पावर b t की पावर c नाल इत्थों a की वैल्यू m नाल m कंपेयर करके a की वैल्यू 1 l नाल l कंपेयर करके b की वैल्यू 1 t नाल t कंपेयर करके c की वैल्यू -2 हो गया कंपैरिजन। हुण सानू 36 यूनिट्स नू CGS सिस्टम कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम 36 यूनिट्स ए न्यू सिस्टम है दिस इज अ न्यू सिस्टम उस कन्वर्ट करना है यदि न्यूमेरिकल वैल्यू 36 मास द यूनिट्स 1 kg लेंथ द यूनिट्स 1 मीटर टाइम द यूनिट्स 1 मिनट CGS कन्वर्ट करना है CGS मास द यूनिट्स होंगे ने ग्राम लेंथ दे होंगे ने सेंटीमीटर टाइम दे होंगे ने सैकेंड सारी वैल्यूज पता चल गई है ना। फार्मूला लगाओ सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सिर्फ इसका आंसर लिख के दे रहे हैं आंसर यदि न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ इतना आंसर आ जाएगा इन्हों सॉल्व कर लियो फार्मूला लगा। मतलब क्वेश्चन एवं भी आ सकता है जिस थोनों एक सिस्टम देके न्यू सिस्टम च कन्वर्ट करने को कहा जाएगा। क्वेश्चन एवं भी आ सकता है भी न्यू सिस्टम देके गिवन सिस्टम च कन्वर्ट करने को कहा जाएगा। जिमें इस न्यू सिस्टम दिता हुआ है आ वाला तो CGS सिस्टम च कन्वर्ट करने को कहा गया। ठीक है बेटा क्वेश्चन ये भी आ सकता है सुनो क्वेश्चन ये भी आ सकता है भी एक सिस्टम न्यू दिता हुआ है उन्होंने होर किसी न्यू सिस्टम च कन्वर्ट करने को कहा जा सकता है। ठीक है पावा है भी क्वेश्चन एक स्टेटमेंट ये भी चेक करो कली स्टेटमेंट चेक कर लो बेटा। व्हेन 2 मीटर 5 kg and 3 minutes are the fundamental units of force in one system whose magnitude is 100. Convert this system into a new system whose fundamental units are 10 meter 50 gram and 5 seconds। चेक करो इस आ भी एक न्यू सिस्टम है आ भी एक न्यू सिस्टम है। सोल्यूशन केड़ी क्वांटिटी है बेटा ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL/t-2 कंपेयर करो m की पावर a l की पावर b t की पावर c ना इतों a की वैल्यू आ जाएगी 1 b की वैल्यू आ जाएगी 1 c की वैल्यू आ जाएगी -2। समझ गए वैल्यूज आ गई हुण उस तो बाद फर्स्ट सिस्टम ये भी न्यू है बेटा इसनों कन्वर्ट करना है सेकंड सिस्टम ये भी न्यू है। फर्स्ट सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी हुई है 100 मास दे यूनिट्स लेंथ दे यूनिट्स टाइम दे यूनिट्स मास दे यूनिट्स है ने 5 kg लेंथ दे है ने 2 मीटर टाइम दे है ने 3 मिनट्स है ना। न्यूमेरिकल N2 वैल्यू फाइंड करनी है। मास दे यूनिट्स दूसरे सिस्टम च मास दे यूनिट्स है ने 50 ग्राम लेंथ दे है ने 10 मीटर ठीक है टाइम दे है ने 5 सेकेंड्स यही वैल्यूज पुट करनी ने फार्मूला लगाओगे। एक क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर देना चलो पूरा कर देना ठीक है। हाँ जी बेटा फार्मूला लगाओ N2 इज इक्वल टू N1 M1 by M2 दी पावर A L1 by L2 दी पावर B
T1 बाई टी टू दी पावर C। वैल्यूज पुट करो। N1 की वैल्यू कितनी दी हुई सी 100। मास M1 5 kg, M2 50 ग्राम। M1 5 kg, M2 50 ग्राम, A1C। L1 2 मीटर, L2 10 मीटर। L1 2 मीटर, L2 10 मीटर, पावर B दी पावर वैल्यू 1 सी की। T1 3 मिनट्स, T2 5 सेकेंड्स। 3 मिनट्स 5 सेकेंड्स, पावर एदी -2, C दी वैल्यू -2 सी की। 100 5 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, नीचे 50 ग्राम। मीटर नाल मीटर कैंसल, 1/5 कटिंग करके। 1 मिनट कंटेन 60 सेकेंड, नीचे 5 सेकेंड। ठीक है, कटिंग कर दो जो होंगी है। 100 ग्राम नाल ग्राम कैंसल, 0 नाल 0 कैंसल, 5 नाल 5 कैंसल। 100 बचा, 1/5 बचा, सेकेंड नाल सेकेंड कैंसल, 5 1 जा 5, 5 1 5 2 12 है ना। 3 × 12 दी पावर -2, पावर ये आ गया बेटा 5। इनू नीचे ले जाओ, 3 नू भी 12 नू भी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। समझ गए? हुण इनू सॉल्व कर लो बेटा। 5 3 × 12 3 × 12 सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बेटा? एवं मतलब कोई पर्टिकुलर सिस्टम जिमें SI सिस्टम ਨੂੰ CGS ਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, CGS ਨੂੰ SI ਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। SI ਜਾਂ CGS ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ SI ਜਾਂ CGS ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ पता है उन्होंने 1 वाली टर्म्स दो, जेड़ा कन्वर्ट करना उन्होंने 2 वाली टर्म्स दो। फार्मूला लगाओ, आंसर। ईजी क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? समझ आ गई?